So that's it. Now we go to the other book, which is Breaking the Habit of Being Yourself by Dr. Joe Dispenza, who's a medical doctor. And Purvi will be reading for us. So Purvi, अभी हम सारे उन लोगों का व्यूज पढ़ रहे हैं जिन्होंने, जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जिन्होंने अपना ओपिनियन या अपनी प्रेज में डॉक्टर जो डिस्पेंजा के लिए बोला है. So yes, Purvi, can we just have you there? Hello, ma'am. Good morning. Good morning, Sal family. Thank you so much for this मैं इसको थोड़ा opportunity. बड़ा करके देखूं, आपको नहीं तो छोटा लगेगा. Hmm. Hmm. हाँ, और थोड़ा छोटा करना पड़ेगा पूर्वी मुझे आपके लिए. हाँ, अभी हाँ, ये मैक्सिमम है जो मैं कर सकती हूँ. इज इट Yeah, ओके, ma'am. रीडेबल फॉर यू? Yeah, it's so beautiful and perfect. Thank you, ma'am. Thank you so Okay. much. Yeah. Please start Ma'am, reading. from where? Breaking the habit of being yourself. ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ. ये इनकी प्रेज में जो बहुत ये न्यूयॉर्क बेस्ट टाइम सेलर हैं, वो बोल रहे हैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा की इस किताब के लिए. Okay. Breaking the habit of being yourself is a powerful blend of leading edge science and real life applications woven into the perfect formula for everyday living. The hierarchy of scientific knowledge tells us that when new discoveries change what we know about the atom, what we know of ourselves, and our brains must change as well. Through the 14 concise chapters of this book, Dr. Joe Dispenza draws upon a lifetime of experience to describe how subtle shifts in the way we use our brains are the quantum key to life affirming changes in our bodies, our lives, and our relationships. In a responsible, well researched, and practical manual that you'll want at your fingertips of your personal practice. Dr. Joe's easy to use step by step techniques give everyone the opportunity to experiment with their own quantum field to discover for themselves what works best. From the powerful exercises highlighting the thinking that keeps us stuck in old beliefs to the simple practices that catapult us beyond our limiting beliefs. This book is the owner's manual to a successful life we wish we'd been given in first grade. If you've always known that there's more to you than you learned in biology 101, but find yourself intimidated by the technical language of science, this is the beautiful book you've been waiting for. Greg Barden, the New York Times best-selling author of Deep Truth and the Divine Metrics. या सो दिस इज, ये जो फॉरवर्ड है ये लिखा हुआ है ग्रेग ब्रेडन का, जो ऑलरेडी अपने फील्ड में चैंप है, नंबर 1 है क्वांटम थ्योरी में. तो उन्होंने बताया है कि डॉक्टर जो डिस्पेंसा ने जो ये किताब लिखी है इसमें टूल्स हैं. तो इस बुक के साथ में हमारा मेडिटेटिव प्रैक्टिस उस तरह से अलाइन हो जाएगा जिस तरह से डॉक्टर जो डिस्पेंसा बता रहे हैं करना, जो बताएंगे. ये बुक एक्चुअली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. तो फर्स्ट 2 पार्ट्स में ये हमको बहुत अच्छे से थ्योरी बताते हैं और उसमें हमको ये पता लग जाता है कि हमारे दिमाग में जो चल रहा होता है वो बहुत जल्दी मैटर में कन्वर्ट हो जाता है.
ठीक है, वो फॉर्म ले लेता है, यानी कि वो हकीकत में बदल जाता है। तो इसीलिए हमारे दिमाग में जो चीजें आ रही हैं उनको हमको बहुत सोच समझ के उनको एयर टाइम देना चाहिए, यानी कि उनको हमें दिमाग में नहीं रखना है अगर वो ऐसी चीज है कि जो गलत है, बिकॉज वो हमारी लाइफ में एब्जॉर्ब होगी। इवन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट समवन एल्स, है ना, अगर हम किसी और के बारे में भी बात कर रहे हैं या किसी और के बारे में हमने बुरा सोचा या कोई भी ऐसी फीलिंग है जिसमें वो हम बन जाते हैं, वो हमारा बीइंग बन जाएगा और बहुत जल्दी वो चीजें हमारी जिंदगी में नेगेटिव एनर्जी हमारे एक एक सेल में पेनिट्रेट करती है और वो हमारी बीइंग के कारण वो हमको नेगेटिव एनवायरमेंट, सर्कमस्टांसेस, डेनिग्रेशन, डाउनफॉल, ये सारी चीजें ये सारी चीजें होने लग जाती हैं। तो उन्होंने बहुत क्लोजली साइंटिफिकली क्वांटम साइंस के बारे में ये बताया। क्वांटम का मतलब होता है सबसे सूक्ष्म, सबसे छोटा। तो उस तरीके से ही हैज एक्सप्लेन दिस टू अस। सो या As a semi-retired psychologist who was thought about many of these issues for years, I have to admit that this book will likely change some long held beliefs in the field of psychology. Dr. Joe's conclusions, which are well grounded in neuroscience, challenge our ideas of who we think we are and what we think is even possible. A brilliant and uplifting book. Dr. Alan Botkin, clinical psychologist, author of Induced After Death Communication. इनके कहने का मतलब है, डॉक्टर एलन का, जो साइकोलॉजिस्ट थे, हैं कि हम ऐसा सोचते हैं ना कि हमारी ये लाइफ के सर्कमस्टांसेस है। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई हैव हर्ड दैट किस्मत पे किसी का जोर नहीं चलता, जितना किस्मत में लिखा है उतना ही मिलेगा। ऐसे हमको पढ़ाया भी गया था और ऐसे ही हमने अपने मन में भी बिलीव लिया था कि दिस इज द डेस्टिनी एंड यू डोंट हैव अ लाइक यू कांट सरपास योर डेस्टिनी, जितना किस्मत में उतना ही मिलेगा, जिस टाइम पे आना है उसी टाइम पे आएगा। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए इन्होंने लिखा है कि इन्होंने चैलेंज किया है जो लिमिटिंग बिलीव्स, ये एक्चुअली लिमिटिंग बिलीफ होता है कि ये मेरी किस्मत है और मुझे इतना ही मिलेगा। यहाँ लगातार ये बोलते आ रहे हैं, डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने इसमें समझाया है कि किस तरह हर वक्त आप अपना फ्यूचर डिसाइड कर रहे हो, अपने इस मोमेंट में ड्वेल करके अपने अपने सोचना, बोलना और करना के हिसाब से, थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस, ठीक है, इस हिसाब से करना है ना। सो जैसे हनुमान चालीसा में भी ये लिखा हुआ है, मन, वचन और क्रम। आपने कभी नोटिस किया है? मन, वचन और क्रम। मन का मतलब है थॉट्स, वचन का मतलब होता है योर वर्ड्स एंड क्रम मतलब एक्शंस। दैट मीन्स थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस वो उस टाइम तुलसीदास जी ने भी लिखा हुआ था, ठीक है। तो इसका मतलब सबका कुछ ना कुछ सत्य तो है ना, इसके पीछे रेलेवेंस है ना। तो उसी रेलेवेंस को ध्यान में रख के हम अपनी इन लिमिटिंग बिलीव्स को हटाएंगे जो अभी तक हम सोचते आ रहे थे, और हम न्यू बिलीव्स स्टैब्लिश करेंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड में, ताकि हम अपनी डिजायर्ड रियलिटी को क्रिएट कर पाए और को क्रिएट करें लोगों के साथ में, ठीक है, उसी तरीके से। बिकॉज क्रिएशन का प्रोसेस ऑफ कोर्स और लोगों की वजह से भी होता है, ठीक है। और इसमें बहुत क्लियरली लाइक इन अब्राहम हिक्स, जेरी हिक्स जो थे एस्टर के हस्बैंड, अभी तो वो ट्रांजिशन ले चुके हैं, वो गुजर गए थे कुछ साल पहले, लेकिन वो हमेशा बोलते थे कि डोंट डिस्कस योर ड्रीम्स विद समवन हु डजंट अंडरस्टैंड देम। लाइक हम एक दूसरे को शेयर करते हैं तो हमें पता होता है, बिकॉज और कोई सोचेगा, लेमैन तो सोचेगा कि हम मैड हैं थोड़े से, isn't it? Why are we constantly talking about something which is not real, which is so surreal, which is not true? People will think like that. ओके, बट अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो आप मेरी बात एक सेकंड में समझ जाओगे। अगर हम वाटर एफर्मेशन कर रहे हैं कुछ भी और उस पर पानी पी रहे हैं, तो हमको पता है कि हमने उसमें उस वाले डिजायर की एनर्जी डाली और हम पानी पी रहे हैं। सपोज हम आपस में भी बात कर रहे हैं एंड वी से ओके, चीयर्स टू योर
अमेजिंग जॉब। सो और फिर उसके बाद हम पानी पी रहे हैं, तो हम लोगों को एक दूसरे का समझ में आ जाएगा, बिकॉज वी आर इन दैट realm where we understand the scientific phenomena behind it. So this is what he is trying to tell you, that इतने limiting beliefs हमारे हैं जो हम सोचते हैं, लेकिन हमको पता नहीं है कि हम कितने बड़े क्रिएटर हैं, और जितनी भगवान में शक्ति है उतनी ही हमारे अंदर है। ठीक है, बट मन वचन एंड क्रम दैट थॉट्स वर्ड्स एंड एक्शंस हैव टू बी अलाइंड इन दैट। या पढ़िए पूर्वी। Yeah, we are in the midst of an unparalleled new era of personal growth in which a productive feedback loop has been established between the latest discoveries of neuroscience and the ancient practices of meditation. Dr. Joe Dispenza's book masterfully yet clearly explains the hard science of how our brains and bodies work. He then applies it practically in a 4-week program of fundamental personal change, showing how we can use a structured meditation program to consciously rewire our neural network for creative and joy. Don Sean Church, a PhD best-selling author of The Genie in Your Genes, eftuniverse.com. या सो डॉसन चर्च ये बोल रहे हैं, जो बेस्ट सेलिंग ऑथर है, कितनी किताब का इंटरेस्टिंग नाम है इनका, द जीनी इन योर जीन्स, बिकॉज एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम द न्यूरल नेटवर्क, यानी कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है थॉट फॉर्म्स में और जो भी है। ठीक है, तो वहां से ये सारी चीजें आती है जो ये बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो इस किताब में जो मैंने बोला है कि हम एक तरीका मेडिटेशन करने का सीखेंगे, बिकॉज डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने समवेयर मिडल ऑफ द बुक में ये बताया है कि जब आप ये 4-week प्रोग्राम हमारे साथ करते हो, वो डेली टेक्निक्स होंगी, मेडिटेशन प्रोग्राम होगा, तो ये जब करते हो तो ये मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूं कि आपकी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े फिनोमिनल चेंजेस आएंगे। ठीक है, बिकॉज हम इस हैक को समझ लेंगे। तो उन्होंने ये बताया कि ये तो हैक है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, लेकिन लोगों को पता नहीं था कि इस तरह से कर सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि इवन बुद्धा ने बोला था, गौतम बुद्धा ने उस जमाने में, कि शून्य की स्टेट तो उन्होंने ही वो की थी ना, कि शून्य में चले जाओ, यानी कि थॉटलेसनेस में चले जाओ। थॉटलेसनेस कब होती है? जब दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा होता, आप एकदम जीरो में होते हो, यू आर नॉट इवन अलाउिंग द थॉट्स टू कम एंड गो, बिकॉज आप सांसों पे केंद्रित करते हो अपना पूरा ध्यान। So you're focusing all your attention on your breathing, on your inhalation and exhalation, जो सांसें अंदर जा रही हैं और सांसें बाहर आ रही हैं, आप इसी पे जब फोकस करते हो, और इस पे अगर आप 6 सांसें भी ऐसे कर लेते हो ना, जिसमें आप थॉटलेसनेस में होते हो, तो उसकी वजह से भी ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस हमारे ब्रेन स्कैन में नजर आते हैं। जैसे ब्रेन स्कैन अगर करते हैं, MRIs करते हैं, तो उसमें हमको पता लग जाता है। और इसका ब्रेन वेव्स मेजर करने का एक अलग टेस्ट होता है जो इन्होंने समझाया है, इसमें स्पेक टेस्ट होता है, SPECT के CT। तो उसमें एकदम पता लग जाता है कि आपने सिर्फ 6 गहरी और लंबी सांसें ली हैं, और इतना ज्यादा डिफरेंस, इतनी हीलिंग रिपेयरिंग हो गई इतनी देर में, इतना कंस्ट्रक्शन हो गया आपकी बॉडी के अंदर, इस तरह से मैसेजेस चले गए, ऑर्गन्स की हीलिंग शुरू हो गई सिर्फ 6 गहरी और लंबी सांसों के साथ में। ठीक है, तो वो इस तरह से स्पेक टेस्ट एनालिसिस के थ्रू भी हमको इस चैप्टर में कहीं बीच में किताब में ये समझाएंगे इन सारी चीजों को। तो ये हमको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग अभी तक बहुत नॉइजी ब्रेन्स के साथ मूव अराउंड करते हैं, है ना। हमारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, हमको रियलाइज नहीं होता है कि वी जस्ट नीड टू डीक्लटर एंड जस्ट नीड टू बी। Okay, just need to be. There is no ing or there is no un. So we are just being. इसका मतलब सिर्फ हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, deliberately. Deliberation से ये शुरू होता है और धीरे धीरे हमारी आदत पड़ जाती है, और हमारे ब्रेन स्कैन्स में रेड एरियाज भी ग्रीन होने लग जाते हैं।
ग्रीन एंड ब्लू. ओके, सो ग्रीन तो बिल्कुल ही काम, ब्लू वाले की हाँ कभी कभी कुछ कुछ चलता है, बट मेजरली दे आर लाइक दैट. सो दैट्स व्हाट इट मीन्स दैट वी वांट ग्रीन एंड ब्लू ब्रेन स्कैन्स. वी डोंट वांट रेड 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 एवरीवेयर. एंड ऑफ कोर्स लाइक रेड इज, जब आप क्रिएटिव होते हो तब भी तो दिमाग ज्यादा यूज करते हो, तो तब वो वाले एरियाज, उस तरह का रेड हमको चाहिए अपने ब्रेन स्कैन्स में. ठीक है, और ये 4 वीक मेडिटेशन का प्रोग्राम इसमें हमको कराया जाएगा. डॉक्टर जो डिस्पेंजा कराएंगे किताब के थ्रू. हाँ जी. Yeah. पढ़ो. Doctor, डॉक्टर जो डिस्पेंजा Doctor, ब्रिंग्स. huh, thank you. Dr. Joe Dispenza brings us the manual of becoming a divine creator. He makes the brain's science practical. He shows us how to break free of the grip of our emotions to create happy, healthy, and abundant lives, and how to finally dream our world into being. I've been waiting for this book for a so long time. Alberto Villoldo, PhD author, The Up Your Power Up Your Brain and Shaman, Healer, Sage. Yeah, so I think they are just ending the praises with a very powerful statement by Dr. Abeldo, who says that इस किताब में मैनुअल है, हमको ये पता लगेगा कि हम डिवाइन क्रिएटर हैं. आपको पता है ना डिवाइन वर्ड क्या होता है? ठीक है, डिवाइन वर्ड मतलब मिस्टिक. बहुत मिस्टिकली एनर्जी फॉर्म के थ्रू हम क्रिएटर हैं, जो हमको पता नहीं है. इसीलिए हम ड्वेल करते हैं, मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, ये प्रॉब्लम चल रही है, मेरा काम बहुत अच्छा नहीं है, तो लगातार हम उसको क्रिएट करते हैं. तो ये यूनिवर्स की गलती तो नहीं है ना? यूनिवर्स ने हमको, भगवान ने, इन्फिनिट ने हमको ह्यूमन माइंड देके भेजा है, और ह्यूमन माइंड के लिए कहा जाता है दैट ह्यूमन माइंड इज द ओनली माइंड विच हैज द एबिलिटी टू चूज एंड ट्रेन. Okay, so we have the ability to choose what we want to see, है ना? And we have the ability to train and fashion our subconscious mind into creating the kind of life that we want to, है ना? मतलब हमारे पास ये पावर है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को मोल्ड करें और ऐसे वेसल में डालें जिस वेसल में हम डालना चाहते हैं, नॉट जिस वेसल में ऑलरेडी सबकॉन्शियस माइंड है. वो वेसल नहीं चाहिए हमको चाहिए हैप्पीनेस का वेसल, हमको चाहिए बहुत अच्छी हेल्थ का वेसल. तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करें. ठीक है, ऐसे थॉट फॉर्म सोच के जो फ्यूचरिस्टिक हैं, जो अप्रिशिएटिव हैं, जो लवफुल है, जिसमें ब्लिस है, जिसमें खुशियां हैं, जिसमें हम रियलाइज करें कि हम दिस इज हाउ पावरफुल क्रिएटर वी हैव बिन, एंड हम थैंक करें अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमें ये एबिलिटी देने के लिए कि हम वी कैन बी डू एंड हैव एनीथिंग दैट वी वांट इन आवर लाइफ. उस तरह का क्रिएट करने की पावर हम में है. तो ये रियलाइज हमको ये किताब कराती है, ये वो बोल रहे हैं. लेकिन मैं आपको तभी वो टूल्स धीरे धीरे बताती भी जा रही हूँ इसमें, कि अपने थॉट्स को कंट्रोल करके रखना और अपनी सांसों पे ध्यान रखना बीच बीच में, और शून्य स्टेट में जाना विच इज कॉल्ड नथिंगनेस, है ना, या थॉटलेसनेस, या तो नथिंगनेस में जाने का बस मतलब होता है कि थोड़ी देर के लिए पॉकेट्स करो. मैं एक बीके शिवानी जी का वीडियो सुन रही थी, बहुत अच्छी पर्सन है वो, बहुत अच्छा बोलती हैं. तो वो कहती हैं कि वो ब्रह्म कुमारी, मतलब हर नेम इज बीके शिवानी, राइट? सो शी कम्स फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत बड़ा काम करते हैं दुनिया के लिए. तो वो ये बता रही थी कि उनके सेंटर्स में, और जब भी आप ब्रह्म कुमारी का वो ले लेते हैं, तो आपको हर 1 घंटे पे you have to have those pockets जिसमें आप nothingness में जाते हो, जिसमें आप सिर्फ सांसें लेते हो 1 मिनट के लिए. तो कहती हैं कि वो रिबूट सिस्टम होता है हमारे लिए, कि हम 1 घंटे पे सबको 1 मिनट के लिए nothingness में जाना होता है. यानी कि सिर्फ, it's not really called meditation, I mean, like, but yeah, you can call it meditation of sorts, but yeah, you're just focusing on your सांसें अंदर जाना और सांसें बाहर आना for about a minute.
तो अब 60 मिनट्स में इतना तो बनता है ना। चलो अगर 60 मिनट्स पूरा नहीं भी कर सकते 1 घंटे में, बिकॉज वर्क प्लेस पे होते हैं, कई बार ऐसा होता है क्राउड में होते हैं, लेकिन 30 सेकेंड्स के लिए कर सकते हैं। और अगर 30 सेकेंड्स के लिए भी नहीं कर सकते तो कम से कम 6 बार या 10 सेकेंड के लिए कर सकते हैं। उसकी वजह से ये जो छोटी छोटी एफर्ट्स हम कर रहे हैं हमारे लिए, इसकी वजह से बड़ी बड़ी चीजें होने लग जाएंगी। ठीक है, बिकॉज नथिंगनेस में जाके आपको क्रिएटरशिप की एबिलिटी आपकी बहुत जबरदस्त एनहांस हो जाती है। एंड देन वट एवर यू थिंक विल बिकम, यू कैन बी डू एंड हैव एनीथिंग, और आपको पता लग जाता है कि आप सोचते हो और वो हो जाता है, फिर सोचोगे और वो हो जाएगा। तो इस तरीके से, ठीक है। तो इस किताब में उन्होंने इसी तरीके से बताया, बट कहीं से तो शुरुआत हम लोग सब कर ही सकते हैं ना अपनी जिंदगी के लिए। तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे कि हम हर 1 घंटे के पॉकेट्स में हम सिर्फ अपनी सांसों के बारे में सोचेंगे। ठीक है, आप हर 1 घंटे का अलार्म लगा सकते हो, रिपीटेड अलार्म करके एक ऑप्शन होता है जब अभी आप अलार्म या रिमाइंडर्स लगाते हो अपने फोन पे, तो हर 1 घंटे के 60 मिनट्स के बाद का रिपीटेड अलार्म, उससे कर चलो। 1-1 घंटे पे नहीं करोगे, कम से कम 2-2, 3-3 घंटे, एज एंड व्हेन यू गेट दैट अपॉर्चुनिटी टू जस्ट बी इन योरसेल्फ एंड फोकस ऑन योर ब्रेथ, अगर वो वाला भी अपॉर्चुनिटी आती है तो आप उस हिसाब से कर सकते हो, है ना। सो दैट वे दिस विल स्लोली बिकम अ हैबिट, बिकॉज ये नई आदतें इनकलकेट करना ही हमको ब्रेक फ्री करेगा फ्रॉम द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ। अदरवाइज माइंड बहुत नॉइजी रहेगा, और माइंड को थोड़ा साइलेंस करने के लिए ये वाली प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांगली हमको हेल्प करेगी और हमको बिल्ड करेगी। फिर हम बहुत आराम से ग्रेविटेट ही नहीं होंगे नेगेटिव साइड पे, और होंगे भी तो हमको बहुत इजी काम तरीके से हम इसको बहुत आराम से एंड्योर कर पाएंगे, और उसका आउटकम इतना अमेजिंग होगा कि हमको पता लग जाएगा कि हमने अपने ऊपर ये एफर्ट किया है, या हमने नया एक पैटर्न क्रिएट किया है कि हम बार बार पॉकेट्स ऑफ जस्ट डीप ब्रीदिंग और गोइंग इनटू नथिंगनेस कर रहे हैं, शून्य में जा रहे हैं बार बार थोड़ी थोड़ी देर पे। तो हमको ये नया पैटर्न हमने स्टैब्लिश किया है जो बहुत पावरफुल पैटर्न है, और इसका असर जब आप देखोगे तो आप देखोगे, मतलब वो होता है कि कई बार बताना और महसूस करने में बहुत अंतर हो जाता है। तो मैं आपको बता तो रही हूँ, लेकिन आप लोग इसको महसूस कीजिए कि इसकी वजह से इतनी ज्यादा फर्क पड़ती है, क्योंकि तभी तो इतने बड़े बड़े लोग सब लोग एक ही बात कर रहे हैं। मतलब मैं जो यहाँ पढ़ रही हूँ यही मैंने सारी अब्राहम हिक्स किताबों में पढ़ा है, उन्होंने कुछ 5-6 किताबें मैंने उनकी पढ़ी हैं, ठीक है, सब में एक ही बात की है। फिर जब मैंने ये वाली बुक पढ़ी, ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ, इसमें भी वही चीज लिखी हुई है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तथ्य है, सत्य है, और हमको कुछ ना कुछ बदलाव करने की जरूरत है। ठीक है, तो अभी तक ब्रेकिंग द हैबिट मतलब पैटर्न कुछ जो हमारे हैं, जल्दी गुस्सा होने के, बहुत रिएक्टिव होने के, इन्होंने डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने इस किताब में रिएक्शन के बारे में बहुत बताया है कि हाउ वी रिएक्ट टू सिचुएशंस इज सो बिलीफ बाउंड, इज वेरी बिलीफ बाउंड। मतलब क्या हमारे पैटर्न्स हैं, क्या है, उस हिसाब से ही हम रिएक्ट करते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि उन सब चेन से और शैकल से कि हमको जिसने पकड़ रखा था, हम बहुत ही बाउंड थे अपने अपने तरीके के सोचने के तरीके में, और कुछ चीजें करने के वेज में, मैनरिज्म्स में, वो सारा, और सोचने के तरीके में हमारे थॉट पैटर्न्स बहुत ही पास्ट बाउंड, एक्सपीरियंस बाउंड और वैसे वाले होते हैं, जिनके कारण हमें करंट सिचुएशन में इश्यूज आ रहे हैं। बट ऑल दैट इज गोइंग टू गेट डिसिपेटेड फ्रॉम आवर लाइफ व्हेन वी रियली फॉलो द टूल्स एंड टेक्निक्स जो इस किताब में बताएं। तो आज के टूल्स एंड टेक्निक्स में अब एक नई हैबिट जो हमको इनकलकेट करनी है, पूरे दिन भर में हमको पॉकेट्स क्रिएट करने हैं जिसमें हम सिर्फ शून्य में जाएंगे, नथिंगनेस में जाएंगे, बाय जस्ट ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट, वेयर आवर थॉट्स विल नॉट बी देयर। फॉर सम पीपल इट माइट बी डिफिकल्ट, कई लोग बहुत ओवर थिंकर्स होते हैं, स्पेशली गर्ल्स, ठीक है, मेन भी होते हैं, लेकिन हाँ गर्ल्स बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करती है। मतलब वो तो बिल्कुल ही आउटकम जो वर्स्ट पॉसिबल चीज हो सकती है ना, वो भी नेचुरली दिमाग में आ जाता है। तो हम अपने आप के वी हैव टू ब्रेक फ्री, राइट, इस किताब का नाम ही है ना कि ब्रेकिंग फ्री। Okay, so we will break free from that old mannerisms, that old habits of ours, and establish new beliefs. To begin with, आज के सेशन से अब हम अपने पूरे दिन भर में कुछ ऐसे पॉकेट्स क्रिएट करेंगे जिसमें हम सिर्फ ब्रीद इन और ब्रीद आउट करेंगे, ठीक है, और दिमाग को खाली। इट विल बी डिफिकल्ट फॉर सम ऑफ अस, फॉर मोस्ट ऑफ अस रादर, लेकिन कोई बात नहीं, 30 सेकेंड्स कर सकते हैं, 15 सेकेंड कर सकते हैं, उससे भी मतलब जो मैनुअल ब्रेन स्कैन्स लेते हैं उनमें इतना ज्यादा फर्क आता है।
ठीक है, सो लेट्स जस्ट डू इट व्हाट एवरीवन सेज। जो इतनी किताबें हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इतनी साइंटिफिक किताब आपके साथ, मतलब हम सब स्टडी कर रहे हैं, एंड आई कैन लीड दैट फॉर यू। एंड बिकॉज अब मुझे लग रहा है कि मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी है ना, ये उनका जूस है। और सब एक ही बातें सबने बताई है, ठीक है, सारी किताबों में। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट डूइंग इट। दिस इज द न्यू टेक्निक वी नीड टू फॉलो ओवर एंड अबाउट whatever we've already been doing for so long. It's just meditation by going into nothingness at different segments of the day. आप बेशक 5 पहर होते हैं, 5 पहर में कर सकते हो, सुबह, मिड मॉर्निंग, लंच टाइम, इवनिंग टाइम एंड नाइट टाइम, इन 5 पहर में आप कर सकते हो। अगर आप हर 1 घंटे पे कर पाते हो तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और सिर्फ 30 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, इट्स नॉट आस्किंग फॉर टू मच। इतना तो अगर हम गाड़ी में भी जा रहे हैं तो कर सकते हैं, ठीक है, बट ड्राइव कर रहे हो तो नहीं करना है। ओनली अगर आप पिलियन हो तो करना है, मतलब अगर कोई और ड्राइव कर रहा है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी रेड, एंड थैंक यू पूर्वी। वी आर जस्ट अबाउट 7 o'clock, और फिर हम कल से इंट्रोडक्शन चैप्टर इनका शुरू करेंगे, जिसमें इन्होंने क्वांटम थ्योरी के बारे में बताया है। ये बुक इन्होंने रॉबी को डेडिकेट की है। अब आई हैव नो आइडिया रॉबी है, बट मे गॉड ब्लेस रॉबी, बिकॉज अगर डॉक्टर जो डिस्पेंसर ने की है, दैट मीन्स दैट दैट पर्सन मस्ट बी अ वेरी पावरफुल पर्सन। So we'll start with the contents and chapter number 1, introduction, tomorrow. So yeah, thank you so much. Thank you, Purvi, for